فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مختلف جامعات کے وائس چانسلر سینئر اساتذہ سے بات چیت کہتے ہیں کہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی. جب پوری قوم آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی. کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں. ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے. ہندوستان جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا. پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے. 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا. بھارت نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو چکا ہے. بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ ہندوستان ہے. ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق کام کریں. جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے اس کی نفی کریں. اساتذہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں. پاکستان کی اگلی نسلوں کی کردار سازی اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے. اساتذہ نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسلوں کو بتانی ہے. ادھر سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں 2 آپریشنز. فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک. لورالائی میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. بھارتی حمایت یافتہ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے. وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک شراکت داری کو بلندی کی نئی سطح پر لے جانے کے عزم کا اعادہ. دونوں رہنماؤں نے تجارت، معیشت، توانائی، دفاع اور سیاست کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا. ملاقات میں باہمی تعاون کے نئے شعبوں کی تلاش پر اتفاق ہوا. سرمایہ کاری کے مواقع، تعلیمی روابط، ثقافتی تبادلوں اور IT کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. ملاقات میں کاسا 1000 کو خطے کے لیے کلیدی منصوبہ بنانے پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعظم نے کونسل کے معاہدے پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی. انسداد دہشت گردی، انسداد سمگلنگ کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل پر زور دیا. تو وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان میں کرپٹو اور بلاک چین کے نئے دور کا آغاز ہو گیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو بلال بن ثاقب کی جانب سے قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ والیٹ ریاستی تحویل میں موجود ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. حکومت کی جانب سے بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ اضافی بجلی مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے پہلے اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا قیام. تمام نجی اداروں سے بہترین انتظامات، کلرفل کلاس رومز، شاندار ماحول اور جدید طریقہ تعلیم. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سینٹر فار ارلی ایجوکیشن میں انرولمنٹ مہم کا آغاز کر دیا ہے. صوبائی وزیر تعلیم کا کمسن بیٹا سینٹر فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں پہلے داخلہ لینے والوں میں شامل. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کرانے والے پہلے صوبائی وزیر بن گئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پری اسکول بیل بجا کر سینٹر ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا باقاعدہ آغاز کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سینٹر فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی آفیشیل یونیفارم کی رونمائی بھی کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا دورہ کیا. والدین نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سینٹر بنانے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سراہا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ آنے والا بجٹ مشکل ہوگا. 2011 میں وفاق کی جانب سے NICVD کو سندھ کے حوالے کیا گیا. وفاق نے NICVD سے جان چھڑوائی. 2011 میں وفاق نے NICVD کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا. سندھ حکومت نے NICVD کے لیے 25 ارب کا بجٹ رکھا ہے. بجٹ بھی آنے والا ہے اور یہ ایک مشکل بجٹ ہوگا. وفاقی حکومت نے 2011 میں اچانک اس اسپتال کو سندھ حکومت کے حوالے کر دیا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے جسے کہتے ہیں نا جان چھڑانا، وہ کام کیا. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں بغیر انفارم کیے انہوں نے بجٹ میں سے اس کی ساری
एलोकेशन निकाल दी हमने बल्दिया पे, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लोगों के लिए ख़ास तौर पे, और जैसे मैंने कहा इसका फ़ायदा तो बाकी पूरा सिंध और बलूचिस्तान के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सेहत हर एक का एक गुड मेडिकल हेल्थ ट्रीटमेंट हर एक का एक राइट है जो हमें देना चाहिए अपने लोगों के लिए को, तो हम कोशिश करते रहेंगे कि हम और बेहतर करें। चेयरमैन साहब को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का केस पेश करें जो भारतीय जारियत थी, उसके खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को अपने राफेल तैयारे पर गुरूर था जो खाक में मिल गया। भारत ने जंग की शुरुआत की थी, इख्तिताम पाकिस्तान ने किया। जिस तरीके से उनकी धुलाई हो रही थी भारत की, तो वो मजा आ गया था। जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को भी गिराया और भारतीय पायलट को भी धोया, मैं समझता इसकी भी कोई तारीखी मिसाल नहीं मिलती। ये शुरुआत भारत ने की है, इसका इख्तिताम हम करेंगे। वक्त हमारी मर्जी का होगा। एज अ नेशन हम कहते हैं जंग ना हो। जिस तरीके से इस मुख्तसर वक्त में ही पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को धोया है, अगर ये कोई 2-4 दिन और होती तो शायद भारत सफाए हस्ती पे नहीं होता। 25 करोड़ अवाम ने जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी है, पूरी कौम मुबारक की मुस्तहक है। अगर दुश्मन मुमालिक आज भी पाकिस्तान पे कोई सीरियस वार करने से पहले डरते हैं, कांपते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और उसका दिफा बहुत मजबूत हाथों में। पाकिस्तान के पास वो एसेट्स हैं जो दुनिया कोई भी उस पर जो मैली आंख से नहीं देख सकता। उस मुल्क ने भी मना कर दिया, शायद मेरे ख्याल से अब आइंदा जो है अनाड़ी पायलटों को और अनाड़ी मुल्कों को इस तरह की चीज़ें नहीं बेची जाएंगी। मैं खुसूस तौर पर मुबारकबाद पेश करूँगा फील्ड मार्शल साहब को, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत भी ज़रूरी है। भारत के खिलाफ 10 मई की कामयाबी में भी टेक्नोलॉजी का अहम किरदार था। आज हमें अज़म करना चाहिए, अब हम मईशत के मैदान में भी हरीफ को चित करेंगे। पाकिस्तान में 2017 से अदलिया को सियासत में मुलव्वस करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे अब सियासी जमातों को मिल बैठ कर ख़त्म करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इस्लामी निज़ाम ही मुल्क की तकदीर बदल सकता है। मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती होनी चाहिए। जागीरदारों की बजाय तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूल किया जा रहा है। यही जागीरदार मुल्क में लूट मार करते हैं। किसानों को रिलीफ दिया जाए। ये निज़ाम अब चलने वाला नहीं, बदलना पड़ेगा। बजट आने से पहले लोग ज़्यादा खदशात का शिकार हो जाते हैं क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। अगर मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं तो मराद क्यों ख़त्म नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में कानून और इंसाफ कमीशन पाकिस्तान का 44वां इजलास एलामिया जारी कर दिया गया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से कमीशन की तश्कील में अहम तब्दीलियों से शुरा को आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में कमीशन के गैर सरकारी अरकान आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस होते थे, अब वकला बरादरी के गैर सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कमीशन को फाल बनाने के लिए बाकायदा इजलास मुनक्किद करने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने कानूनी इस्लाहाती तजावीज़ तलब करने, तहकीकी सलाहियतों में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने तहकीकी टीम के साथ रिसर्च एसोसिएट्स की शमूलियत की तजवीज़ भी दी। चीफ जस्टिस की जानिब से मरहलावार इस्लाहात की अहमियत पर भी जोर दिया गया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में मखसूस सीटों के फैसले के खिलाफ हुकूमती नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस सीटों के फैसले में वोट को बुनियादी हक कहा गया है, हालांकि ये बुनियादी हक नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि जज आईनी दायरा कार से बाहर जाकर फैसले कैसे दे सकता है। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि अक्सरियती और अक़लियती फैसलों में PTI को जमात तस्लीम किया गया है। इंतखाबी हक सलब करना जमहूरियत के मुनाफी है। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत।
सुन्नी तहा कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौकफ अपनाया कि PTI उम्मीदवारों को जानबूझकर इनका इंतखाबी हक नहीं दिया गया, मखसूस नशिस्तों से महरूम रखकर आईनी खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने कहा कि अकलियती और अक्सरियती फैसले दोनों में PTI को जमात तस्लीम किया गया था। जस्टिस जमाल मदखेल ने कहा कि इनके और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में भी PTI को जमात तस्लीम किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि क्या जज सिर्फ अवामी उमंगों के लिए आइन को दोबारा लिख सकते हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने मौकफ दिया कि कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। ताहम जस्टिस मुसरत हिलाली ने एतराज उठाया कि फैसले में 3 दिन की मुद्दत को 15 दिन करके आइन की असल रूह को बदला गया। जस्टिस सलाउद्दीन ने निशानदेही की कि जिन्होंने नजरसानी दायर की उन्होंने फैसले के हकाइक ही नहीं बताए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप तमाम मामलात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ना ठहराएं, कुछ अपने जिम्मे भी लें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि PTI के पास इतने ज़हीन कानूनी दिमाग थे तो उन्होंने कानून नहीं पढ़ा था क्या? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जजेस भी इतने बड़े दिमाग हैं, इनसे भी गलतियां हो सकती हैं। बोले अगर आइन इतना क्लियर होता तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही न होती। अदालत ने समाअत 16 जून की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। रावी किनारे सजी सगिया मवेशी मंडी में भूरे रंग के खूबसूरत कद काट के बैल बबलू और टाइगर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। इन दोनों बैलों से मिलवा रही हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। जी सामिया। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। शहर लाहौर में तमाम छोटी और बड़ी मंडियाँ जो है वो सज चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त मैं रावी के किनारे जो सगियाँ मवेशी मंडी है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 बहुत ही खूबसूरत जानवर बबलू और टाइगर मंडी की तवज्जो का ख़ास मरकज़ बने हुए हैं। हम इनके मालिक से जानते हैं। मुझे बताइएगा, बहुत खूबसूरत ये जानवर हैं और कद-काट भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपने बताया 50 लाख इनकी डिमांड है, क्या वजह है इसकी और ये क्या खाते पीते हैं ऐसा ख़ास? ठीक है, ये दोनों दूध पीते हैं और चोखर दाना, ठीक है, वंड वगैरह इनको डालते हैं, ठीक है, मेवा वगैरह खाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये दलिया वगैरह, दूध, इसी तरह की चीज़ें इनको देते हैं हम। और डिमांड इनकी सिर्फ हमने 50 लाख रुपए रखी है दोनों की। अच्छा जी बिल्कुल, टाइगर और बबलू के अलावा भी यहाँ पर आपको जितने भी जानवर मेरे कब में नज़र आ रहे हैं भूरे रंग के ख़ास नस्ल के ये जानवर हैं और सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर हैं। दलिया और दीगर इस तरह की चीज़ें खाते हैं। 50 लाख इनकी जो है मालियत है, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से जितने भी यहाँ पर ख़रीदार हैं तवज्जो का मरकज़ ज़रूर बने हुए हैं। लेकिन ख़रीदारों का ये कहना है कि इनकी जेब पर जो है खासे भारी हैं। अलबत्ता सबकी यही कोशिश है कि बबलू और टाइगर को अपने साथ ही लेकर जाया जाए। जी नाज़रीन, कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर हैं। कीमत दुगनी तलब किए जाने का शिकवा है। कुर्बानी के लिए शहरी महंगे दामों मवेशी खरीदने पर मजबूर नजर आते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अली मेहदी से, जो इस वक्त गुलशन के इलाके में मवेशी मंडी में मौजूद है। जी अली, बताइएगा कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी शहरियों के लिए कितना कड़ा इम्तिहान बन चुकी है? जी, इस वक्त मैं गुलशन के इलाके की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अब जिसका मैं सौदा कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 4.5 और 5 लाख रुपए भी इसी मंडी में कीमत बता रहे हैं, लेकिन मैं जो सौदा अब तकरीबन फ़ाइनल हो गया है और 3 लाख डिमांड कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे कम में हो जाए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। इनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि इनका सौदा होने वाला है। इनका जानवर कितने मन वजनी है, कौन सी नस्ल का है और कितनी वो फाइनल कीमत पे दे देंगे, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, ये सिंध का जानवर है, सिंध की नस्ल का है। ये भाई ने खूबसूरत है, पसंद किया है छोटे ने। मैंने 3.5 लाख बोले, अभी 3 लाख तक सौदा बन जाएगा। कितने मन वजनी है ये? 4 4.5 होगा। जी, आपने गुफ्तगू सुनी व्यापारी की भी और ख़रीदार की भी। महंगाई की शिकायत जो है वो आम नज़र आती है। व्यापारियों का कहना है कि वो अपने लिहाज से मुनासिब कीमत तलब कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है इन दोनों व्यापारी और ख़रीदार के दरमियान के सौदा जो है उनके दरमियान तय पा जाएगा और जिस जानवर को इन्होंने पसंद किया ये अपने घर ले जाने में और फरीज़ा कुर्बानी अदा करने में कामयाब हो सकेंगे। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।